everybody. चल रहा है माइक? Okay, ठीक है. Good evening, everybody. नहीं चल रहा है. First of all, thank you for being here. Secondly, thank you for inviting me for this amazing journey that you are setting your course on. Thirdly, ये नहीं है कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ और शबीना कोरियोग्राफर है, हाँ ठीक है हमने काम किया है तो हम सपोर्ट के लिए आए. वी गो बैक ईयर्स. आज डांस के अंदर अगर मुझे कुछ आता है तो ये है. बॉस होते हैं पर जो असली जो मार के सिखाने वाले होते हैं ना वो असिस्टेंट्स होते हैं. और ये वो थी जब मैं डांसर थी. और शबीना और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम रही है क्योंकि शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर and she is the strongest pillar of our family. So am I. And I guess that is the way that we have connected. And जैसे टैलेंट की बात करते हैं, सबके पास होती है, सबकी टैलेंट अलग अलग होती है. एक इंसान चाहिए खाली वो हाथ बढ़ाने वाला, और वो हाथ इन्होंने बढ़ाया है. बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है पर कोई हाथ थामने वाला नहीं है. सो आई गेस इसके आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर कंसिडरिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी एंड कमिंग टू बी यू. बी जो एक शब्द होता है ना, उसके आगे का क्या सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है. बी courageous, be you, be not, whatever it is you who chooses, but be is something that stays with you all the time. Since we have gone through the nostalgia, I would request Shabina ma'am to do one step with Daisy ma'am, if it's possible. Please, please. Okay, on request. They should do a step, right? Any, ma'am, please. Ma'am's all said already. Okay. Woo! Let's have a round of applause, come on! एक और बहुत मेरे दिल से करीब इंसान है. आई वुड रियली लाइक मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज. माय फर्स्ट डायरेक्टर, जब मुझे कुछ नहीं आता था मैम ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ डांस करो. एंड आई मिस दादा टुडे. I'm choked because I feel like a mother more than a director to Shabina. Shabina's journey has been very close to me. She was assisting when I was doing Silsila Hai Pyar Ka. And as Daisy said, one of the most efficient assistant who gave me, it was my first Hindi film with NNCP, and I was very nervous because so many dancers around. She used to come and tell me, ho jayega ma'am, tension mat lena. So when I did Pehchan, obvious choice was to get Shabina on board. And this child was amazing. I have no words to tell that. Somewhere I realized, because I have got my middle class values intact, and my children are actors, but I've tried to imbibe that in them, which I found a lot in Shabina. Her she was very grounded, and her approach to work, the passion that she had for work, was not just ki kar lete, ho jayega. It was not that. If she would see in my eyes also that I was not happy, she used to come and ask me, what's the problem? Which I would not find in others. So I used to always see that this child had it in her.
And I met her mother yesterday. We stay in the same society. So I was telling her, I've worked with all the choreographers with my films, which were little films that I've done. But I said, this child will go a long way because she's human and she's grounded. So these are the two qualities I feel which help you to excel in this field, because you're working along with people. Now, besides her work, to be associated with a big task. This is a task of society. Today we only criticize, we are only discussing, but nobody steps out of their house. It's easy to have a cup of coffee or tea in your hand and start discussing, this is happening in the country, that is happening, we should do this. But nobody ventures out. And these two young girls, may I say that because of my age, have ventured to do that. So that makes me feel so very proud. And what women power are we talking about? Power is there everywhere. They're building society, they're building homes. All these children that they'll be getting out, they're going to be homemakers. And I hope by God's grace that this spreads like fire. And today the world needs a lot of positivity. We need to see dreams, because people have stopped dreaming, so no success they are seeing. Because once you don't dream, you can't see success also. So I'm so thankful to the Lord that He has chosen such a noble soul for such a big task. And artist, congratulations to you that you're associated. May God bless them, and may this initiative take a big turn and take the nation by swipe the nation. Thank you so much, Shabina. Very proud of you. Thank you. And heartiest congratulations to you, ma'am. Your daughter has imbibed all the right qualities that you had taught her. Thank you so much. Thank you. Check. Exactly. And, in this journey, this is not about me. We've been talking about me a lot, everybody. Thank you so much. Thank you, everyone. And this is about BU and reality in reality. So there is a connection between BU and reality. As Daisy said it so well. B के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो. What you want to be. That's BU. That's where I came into BU, that okay, together, because she has big dreams, her thoughts are really noble and nice, and reality happened under BU. आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे. आप लोग हो जो इसको पहुँचाओगे. और ये एक ही अनाउंसमेंट नहीं है. We have a big news coming up for reality and reality. We have some really, like, people want to touch and they want to come forward. And we will, why I'm not doing all these, because मैं चाहती हूँ कि ये बहुत सीधा रहे हर चीज़, we are reaching out to people on our own, we're talking to them, खुद बात कर रहे हैं, खुद ऑडिशन ले रहे हैं, खुद उनके ऑडिशन के लिए भी उनको जहाँ भी ले जाएंगे हम खुद ले जाएंगे. तो ये जितना भी, क्योंकि इसका नाम ही रियलिटी इन रियलिटी है, इसलिए मैं इसको जितना रियल रख सकती हूँ मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन बाकी लोगों तक जहाँ तक बात नहीं पहुँची है वो आप लोग पहुँचाओगे. और थैंक यू फॉर कमिंग. और एक और थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ, मिस्टर अंसारी. थैंक्स फॉर बीइंग माय बैकबोन ऑलवेज. थैंक यू. अभी बोलो क्या करना. And now I request the media photographers to come forward for the photo OP along with everyone. Oh, yeah. Daisy, being a fabulous actor and a stunning dance performer, how much involved are you with this initiative, and what's your take on this? How much, sorry? How much involved are you with this initiative? Involved? Yeah. I think I've already said enough right now that it relates to my life. Like, I come from a very humble background. I don't come from somebody who's, just ki family is very well-to-do or something like that. But एक talent थी, किसी ने वो talent को recognize किया, मुझे वो हाथ दिया, मुझे वो support दिया. That is the reason why I reached where I am today. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप capable हो किसी को हाथ बढ़ाने के लिए, तो definitely करो, क्योंकि आज भगवान ने आपको एक मुकाम पर लाया है. जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के लिए करो.
Hi, Shabina, Tejal and the entire team, congratulations. शो के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, किस तरह का रहेगा? जैसे कि हमने वूगी बूगी पहले देखा था, वहाँ पर भी लोगों की उनकी टीम थी जो दे यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर टैलेंट. आप यहाँ पर पर्सनली जा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग. एंड ये कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा, कहाँ पर लेके आप दिखाओगे, और व्हाट ऑल सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, ऐसे कुछ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ जजेस. अभी अगर शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, वेयर यू वांट लाइक द ऑडियंस शुड वॉच एक्चुअली, तो वहाँ पर जैसे जजेस होते हैं, सेलिब्रिटी जजेस, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. सी फॉर्मेट ये है कि ये हम घर घर जाके लोगों को लेकर आते हैं. एनी डांस फॉर्म यू नीड टू नो डांस, दैट्स इम्पॉर्टेंट. और हम उन्हें लाते हैं, उनके साथ हमारा फर्स्ट राउंड होगा. इसमें जो हमारा ऑडिशन के बाद जो होगा सिलेक्ट, हमने कुछ मुंबई के स्लम्स को सिलेक्ट किया है. अब मुंबई के स्लम अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है एरिया, तो हमने सारे एरियाज़ को सिलेक्ट किया है और 5 से 6 एरिया के बीच में हम एक कंपटीशन करेंगे. और उस कंपटीशन में जो जीतेगा उन्हें मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप रिगार्डिंग दिस. लेकिन जो 5 एरिया के बीच में जो बंदे 3 चुने जाएंगे जो जीतेंगे, उनको हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए पूरा हो जाएगा. उन्हें एक ट्रॉफ़ी दे के हम छोड़ने वाले नहीं हैं. मेरा आइडिया ये है कि उनकी ज़िंदगी गुजर बसर चले और वो भी ऐसा काम करे जो हमने शुरू किया है, तो हम उन्हें वो देने वाले हैं. इसी तरह से जो 5-5 एरिया करके हमें जितने एरिया होंगे, उन सब 5-5 एरिया के बीच में जो 3-3 विनर होंगे, उन्हें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो उनकी ज़िंदगी चलाने और उनके साथ और भी बहुत लोगों का भला होगा इसमें. और इसके बाद इन जीते हुए 3-3 लोगों के बीच में एक फाइनल कंपटीशन होगा और उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा. वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यस वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप. जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. दे ऑल लव मी. देयर आर स्टार्स हु हैव सीन मी ग्रोइंग इन लाइफ. आई स्टार्टेड वेरी यंग, तो एवरीबडी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. आई एम सो लकी दैट मैं पहले खुद अकेले करना चाहती थी कि मैं कितना कर सकती हूँ. एंड टचवुड वी डिड इट, एंड तेजल केम फॉरवर्ड. And we have couple of things lined up and lots of people are coming forward. But एक वादा है मेरा कि कुछ भी हो जाए, इसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी तक लेकर आएंगे, लेकिन आगे जाके प्लान कुछ और भी है. We will take it forward the way, we will get opportunity. We have people coming in. इसको जितना रियल रख सकते हैं, वो मेरा वादा है, मैं उसको उतना रियल रखूँगी ताकि टैलेंट अपने मुकाम तक पहुँच जाए. डिजिटल, आई मीन टू से इट विल बी ऑन यूट्यूब, या आपका खुद का रहेगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऑल ओवर. एंड वी हैव PU Instagram, we have reality and we are going to showcase over there right now, for now when I speak to you. इसके बाद हमारे प्लान्स है और बड़े, that we will reveal later on. अच्छा, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा. और एक जैसे टैलेंट को खोजते वक्त इमोशनल मूवमेंट्स तो बहुत आए होंगे, बट एनी वन थिंग लाइक व्हिच यू रिमेंबर लाइक वाज अ रियली हार्ड टैलेंट और आपको बहुत उसके लिए भी शायद कुछ कष्ट भी हुआ होगा, ऐसा एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? जो मैंने AV दिखाया था, जो लड़की थी उसमें, मतलब जब मेरी टीम ने उनकी कहानी सुनाई तो मैं सुनकर रो पड़ी और मुझे लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए. वो लड़की छोटी थी जब वो गिर गई थी और उसका ये पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो गया था. मैंने जब उसका डांस देखा तो मुझे यकीन नहीं आया. देन डांस दिखाने के बाद माय टीम टोल्ड मी दैट शी हैज़ दिस प्रॉब्लम. मैंने उसको रात को सोते वक्त कुछ क्लिप लगा के सोना होता है जो 4 घंटे तक दर्द होता है. लेकिन आप अगर उस लड़की का डांस देख रहे होगे तो आप खुशी, इमोशन, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी. इतना परफेक्ट डांस करती है और उसके माँ बाप उसके स्पॉन्सर नहीं करते, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो वो छोटी मोटी क्लासेस गार्डन में कहीं भी चला के अपना घर चलाती है, अपने आप को सिखा रही है, खुद डांस फॉर्म सीख रही है और उसके अलावा भी वो गरीब बच्चों को सिखा रही है. जब मैं उसको मिलने गई तो मुझे लगा मैंने बहुत लेट कर दिया. ये बच्ची सिर्फ 14-15 साल की है. ऐसी ऐसी कहानियाँ, ये एक कहानी है, एक और दूसरी का, ऐसी कई कहानियाँ हैं. अभी तो मैं सिर्फ 2 लोगों तक पहुँची हूँ, टीम कई लोगों तक पहुँची है. मैं रह नहीं पाई कि ये शो के पहले ही मैं जाके मिलकर आ गई. और ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे पास है. हम वीडियो लेकर आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका डांस देखते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, मिलते हैं. मैंने टीम को ये ट्रेन किया है कि आप उनके मेंबर बन जाओ, आप उनको महसूस कराओ कि आप इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, क्योंकि आपके बच्चे के पास टैलेंट है. तो दिस इज़ बीन अ वेरी इमोशनल जर्नी. एवरी डे वी क्राई टुगेदर
टीम और मैं, हम रोज़ रोए हैं, रोज़ हंसे हैं और रोज़ आना हौसला बढ़ा है मेरा हर दिन मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने ये किया, यू नो इट्स बीन रियली इमोशनल, बट हिम्मत बहुत आई है, जितने लोगों से मिले उतनी हिम्मत आई है। हेलो मैम यो हेलो माइक पास, हाय। हाय मैम। तो मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कल्चर डांस हो गया, भरतनाट्यम और हिप हॉप हो गया, तो 2021 में या 2020 की भी बात कर लूँ तो 2020 और 2021 में हिप हॉप ज़्यादा चलता है और कल्चर डांस अभी इतना नहीं चलता है। तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कल्चर डांस को और इम्पोर्टेंस दें और कल्चर डांस के और लोग आपसे जुड़े, सो दैट वी कैन प्रमोट कल्चर डांस ऑल्सो? आइडिया यही है, बहुत अच्छा सवाल है ये। वक्त के साथ चलना अच्छा होता है। हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, ये सारे बैले बेली, ये सारे डांस फॉर्म वेस्टर्न आए हैं, ये आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा वो होगा हमारा क्लासिकल, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे क्लासिकल डांस सीख कर गई है और अपने अपने डांस में फॉर्म में उसको तब्दील करके पेश किया है। तो मैं यहाँ पर जब मैं ये डांसर्स से मिलती हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ हिप हॉप चाहिए या कोई और, मैं उनसे कहती हूँ आप अपने डांस को भी करिए। हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे मैं वेस्टर्न भी जानने वालों को ये कहने वाली हूँ कि आप इंडियन कर सकते हो, फोक कर सकते हो तो करो, बिकॉज वो एक सेगमेंट डाला है मैंने। मैं चाहती हूँ हमारी सभ्यता रहे, जिंदा कायम रहे, यू नो। मैं बॉलीवुड में भी वो ट्राई करती हूँ कि सारे डांस फॉर्म आते हैं, लेकिन हमारा जो है वो नहीं छोड़ना है हमें, वो ब्यूटीफुल डांस है। तो हमारे इस शो में एक पूरा सेगमेंट रखा हुआ है जहाँ पर हम इंडियन क्लासिकल और फोक डांस को अहमियत दे रहे हैं, तो कंटेस्टेंट्स को वो आना भी ज़रूरी है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी हैप्पी टू नो कि आप कथक और भरतनाट्यम को भी बढ़ावा देने वाले हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ क्लासिकल डांसर एंड आई नो 3 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल। वेरी नाइस। तो मेरा सवाल तेजल जी से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि BU में मैंने खुद शूट किया एंड आई लव योर स्टूडियो एंड आई वांट टू नो कि आपको ऐसी क्या क्वालिटी शबीना जी में दिखी जो आपको लगता है BU के साथ रेजोनेट करती है बहुत स्ट्रांगली? BU एक ऐसा नाम है जो हर टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है फर्स्ट डे से। सो दिस वाज माय मेन एम व्हेन आई स्टार्टेड BU। मेरा फर्स्ट एम था कि मुझे टैलेंट को बाहर निकालना था, बट शबीना दी ने मुझे वो रास्ता और मेरा साथ दिया और आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ वेयर शी टोल्ड मी and briefed me and told me such amazing journeys which she has come through, and इन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी है जहाँ पे मैं यंग टैलेंट को, ऑफ कोर्स बाय नॉट डांसिंग, BU में वर्कशॉप्स होते थे, लोग आते थे, वहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, उनको इंस्ट्रक्टर बनाते थे, बट ऐसे ऐसे लोग हैं इन मैनी प्लेसेस लाइक दे कैन नॉट अफोर्ड टू कम। तो वर्कशॉप में भी देयर वर लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे यूज्ड टू कम कि मैडम आई मीन दे couldn't afford to even pay 200, 300, 400, 500. We were that time of course ready to get them inside. But मैंने सोचा ऐसे लोग जो इतने अच्छे टैलेंटेड हैं उनको लेके आना बाहर बहुत इम्पोर्टेंट है। शबीना दी इज़ I think an angel for all those talented people, and we and I and my team and Shabina Di's team, we are definitely going to make sure कि जितने भी young talent है इंडिया में, we are definitely going to go pan India for sure. But in Maharashtra, for especially Maharashtra, Mumbai, we are definitely going to make sure कि सारे young talented people हम definitely बाहर उनको लेके आएंगे और उनको platform 100% देंगे, and that is what the main aim is with this beautiful angel. Thank you. Thank you. मैम, शबीना मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र कवर करेगी कि ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है और टैलेंट भी बहुत खूब है हमारे देश में, तो आप कहाँ तो और
दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की इस पूरी जर्नी में जो आपने स्टार्ट की है? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बताना ही चाह रही थी ये सिर्फ अभी सिर्फ मुंबई लेवल पे शुरू किया है, और जब हमने शुरू किया तो कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद जैसे टीम जाने लगी, बहुत सारे हमें डीएम आने लगे बाहर से, मुंबई के आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मीरा रोड, नाला सुपारा, ये अंबरनाथ वगैरह, जो मुझे कई एरिया पता भी नहीं होते थे, वहाँ से आने लगा कि आप हमारे लिए भी करिए, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है हम मुंबई के लिए करेंगे, हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, बल्कि हम बस फरवरी में अनाउंसमेंट आएगी। महाराष्ट्र के बाद हम स्टेट लेवल जाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया है कि हर जगह ऐसा टैलेंट है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमारे सीजन्स भी होंगे। बहुत ऐसे बच्चों से मिले जो मुझे गाने भेजते हैं कि मैम बच्चों के लिए भी कुछ करिए। बहुत सारी मम्मीज़ है जो बहुत अच्छा डांस करती है, दे सेज हमारे लिए भी करिए। तो ये जर्नी के थ्रू मैंने एक्चुअली, आप अगर कहेंगे कि ये चीज़ें बनती चली गई, एक सर्वे की तरह एक चीज़ को शुरू किया, लेकिन मुलाकात होती गई, कहानियाँ बढ़ती गई, लोग मिलते गए, तो चीज़ें हौसला बढ़ा और हौसले के साथ हमने अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। तो इसलिए इसको हम हर लेवल पे महाराष्ट्र, स्टेट और इंटरनेशनल इंशाल्लाह ले जाएंगे। इसके सीजन्स भी होंगे, सीज़न 1, 2, 3, जितने इंशाल्लाह जितने लोगों को ज़रूरत है हम करेंगे इसको। और डेफिनेटली डेज़ी हैव कम फॉरवर्ड, एंड और भी वेल विशर्स है, दे विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल डेफिनेटली मेक दिस अ ह्यूज बिग जर्नी। और जहाँ तक बात करें हमारी तकलीफ़ों की, तो आप सोच सकते हो कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, और वहाँ पे ये टीम पूरे अपने मास्क लगाकर, बैग लेकर, कोट, हाथ में ग्लव्स सब करके ये लोग जाते थे। हम हर 2 दिन में, एक दिन में एक बार मीटिंग करते थे, और मेरी मीटिंग 4 से 6 से 8 घंटे चलती थी इनको ट्रेन करने की। अगर आप मेरी टीम को देखो तो इसमें एक 17 ईयर का बच्चा भी है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, 30, एक मदर है। तो हर, ये सिर्फ डांसर लोग नहीं है ये लोग, इसमें से 4 लोग हैं जो मेरे असिस्टेंट और मेरे डांसर हैं, बाकी सब बाहर से है जिन्हें मैंने इंटरव्यू करके बुलाया है। और इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए, अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप एक्चुअली समझोगे कि क्या है। मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि क्योंकि ये जर्नी एक इमोशनल जर्नी है, ये हिम्मत वालों की जर्नी है जो हार ना माने, और ये एक पेट के भूख की जर्नी भी है। अगर आपके पेट में भूख जब तक रहेगी, आपकी आग आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो इंटरव्यू के जो सवालात थे वो सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट करते थे। और ये जो बैठे हैं मेरे सामने, आई ऑलवेज से आई लव देम, इन लोगों ने, बहुत लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, ये सारे चूज़ हुए, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हारने वालों में से है, फाइटर्स हैं, और जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये यूनिक इंटरव्यू था हमारा। Hello. Yeah. ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम। Hello. Yeah, was in front of you. My question is to Daisy. Hello. Daisy. Yeah. Yeah. लास्ट क्वेश्चन है। Yeah. Daisy. शबीना जी, Just want to know. Hello. इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने सो फॉर, इट्स ए वेरी गुड जर्नी, लेकिन आपको देखकर और लोग भी इंस्पायर होंगे। अगर वो भी ऐसा करें, डिफरेंट टैलेंट को लेके, तो आपको कैसा फील होगा? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। आपको देखकर और लोग भी आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टाइल को घर से लेके आएंगे कलाकारों को, तो अच्छी बात है। तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगेगा सर। एक सोसाइटी में चेंज अगर आपसे बन रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया हुआ है कि मैं इसलिए आपको ट्रेन कर रही हूँ कि आप छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आपने भी आगे बढ़कर एक और टीम बनानी है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हमें बरकरार रखना है। तो इट विल बी अ ग्रेट, हमसे पहले कुछ जो अच्छे लोगों ने कुछ किया है, हमें प्लेटफॉर्म दिया है, तो आज अगर मैं इस काबिल हूँ कि प्लेटफॉर्म बना सकूँ, इस तरह का हाथ बढ़ा सकूँ, तो व्हाई नॉट। आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर और भी लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। और मैं ना सिर्फ डांसर्स, बल्कि हमारे पास कुछ सिंगर्स आए हैं, कुछ एक्टर्स भी आए हैं, दे ऑल सेंड मी AVs एंड ऑल, एंड इंशाल्लाह विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम। वेरी नाइस। Yeah. Daisy. Just want to know. I have a couple of questions to you. First thing, how you feel sharing dice with your guru? Sharing what? I said, how you feel sharing dice with your guru, Shabina? डेफिनेटली इमोशनल था। जब मैं इनको वीडियो भी भेज रही थी, मैं लिटरली चोक हो रही थी
क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे साल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शबीना और मैं शेयर करते हैं. आई थिंक इट्स मोर देन 12-15 years का रिलेशन दैट वी हैव हैड. तो कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ है कि कि हाँ ठीक है क्योंकि सपोर्ट करना है तो करना है. नहीं, ऐसे नहीं है. कभी कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर एक फीलिंग होती है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप खाली उसे महसूस कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी राइट नाउ. मेरा अगला सवाल ये है कि रियलिटी इन रियलिटी जो आपका शो है, आई रियली अप्रिशिएट दैट इट्स डूइंग ऑल ओवर मुंबई एंड टेकिंग सबर्ब्स एंड ऑल. इन रियलिटी हाउ you will be connected, how you will be उनका साथ दोगे? Will you be going to all these places? To be very honest, मुझे शबीना ने कुछ दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने मुझे बताया था ये प्रोजेक्ट के बारे में, और without even she telling me anything, I was like, I think it was me who said कि please count me in. I want to be a part of this journey because it just takes one good deed from that one person and the others join. So I think I am one of the fragments to join to this amazing deed that Shabina is doing to everybody who are unfortunate outside. Thank you. शबीना, हमारे आपके फेवरेट स्टार, और शायद वो भी आपको फेवरेट मानते हैं, सलमान खान, हमारे भाईजान, क्या कहना चाहोगे? उनको जब पता चला होगा, डेफिनेटली आपने उनके साथ भी शेयर किया होगा, एंड आई थिंक सो कि इट माइट बी अ बिग रेवलेशन ऑल्सो, आई थिंक सो, बट समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड लाइक टू से समथिंग. अगर सलमान भाई को इस बारे में पता चला, हाउ ही रिएक्टेड, एंड मे बी अगर वो उनका कुछ एसोसिएशन बताना चाहोगे तो आप. मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने उन्हें नहीं बताया अब तक. मैंने पहले भी कहा कि ये जर्नी मैंने बिना किसी को बताए खुद अकेले अपने बल पे शुरू की थी. इसका एक रीज़न ये था कि मैं अपने आप को भी चेक करना चाहती थी. मैं सीरियसली आई वांटेड टू चेक माई सेल्फ. आई वुड हैव गॉन टू एनी टीवी चैनल, आई वुड हैव गॉन टू सलमान सर, आई वुड हैव गॉन टू एनीबडी जिसके साथ काम किया है मैंने. मुझे मैंने जहाँ काम किया मुझे इज़्ज़त बहुत मिली है और वो लोग मना नहीं करते, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसे. मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने आप को टटोला जाए, अपने आप से अपने साथ अपने आप को लेकर बढ़ा जाए. और फिर मैंने टीम बनाया. मैंने किसी को नहीं बताया. जैसे डेजी ने कहा कि मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ही डेजी को बताया. मैंने किसी स्टार की मदद नहीं ली, मैंने किसी चैनल की मदद नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, अपने बल पे शुरू किया. और जो इंसान मेरे साथ आगे आया वो थी तेजल, बिकॉज हम BU के बारे में बात कर रहे थे, BU से एसोसिएट होने की बात कर रहे थे, एंड देन BU के ज़रिए हम दोनों ने ये शुरू किया. तो और मैं बहुत खुश हूँ विद द रिज़ल्ट. विद द रिज़ल्ट आई एम सीरियसली हैप्पी. अगर मैं किसी को कनेक्ट कर लेती तो शायद ये जो चल कर जाने की जर्नी है वो शॉर्टकट हो जाती. लोग शायद तंबू बांध के वहाँ बुला लेते या बोलते रेसल हॉल में आओ. मैं ये नहीं चाहती थी. मैं चाहती थी ये रियल में रियल हो. इसलिए हमने इस जर्नी को बिना किसी को बताए, पब्लिसिटी भी नहीं की, कुछ नहीं, बस हम जाते रहे. पब्लिसिटी होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग हमें पहचानेंगे. ये भी मेरा आइडिया नहीं था कि लोग हमें पहचाने, हम जाए, लोग आए, फ़ोटो खींचे. इसको बिल्कुल रियल रखा गया अब तक, क्योंकि जैसे ही स्टार्स आने लगते हैं आपको बढ़ावा मिलता है, चीज़ें और बढ़ती है, मैं जानती हूँ. बट ये ज़रूरी था इस रियलिटी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए, टीम को मजबूत करने के लिए और अपने आप को मजबूत. नाउ फ्रॉम हियर एज डेजी इज़ हियर, शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह. एंड वी हैव सम मोर पीपल कमिंग इन. सलमान सर को मैंने नहीं बताया अभी तक, और अभी पता चल जाएगा शायद. हाँ, शायद मैंने अभी गाना भी शूट किया लेकिन मैंने नहीं बताया बिल्कुल. बात ऐसी नहीं, क्योंकि फिर देखेंगे, आपसे पता चलेगा. हम बाद में आते हैं, आप लोग आपसे पता बोलोगे. चलेगा. इंशाल्लाह. Okay, along with us. Daisy here. Just ma'am, just a second. I'm so sorry. So along with us we have Sunil Pal sir. I request you to please join us on the dais. Let's have a round of applause. I request someone from the JW team. I request someone from the Marriott team to please arrange a chair on the dais, please. Can I have a chair? And it also says, be bold. What is be bold for you?
be confident. What is be confident for you? And be colorful. And which film आपको सबसे bold लगी? Film. Film and the scene in the film. As I said that B जो है वो आपका है, उसके आगे आपको जो लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है. आपने जितने भी वर्ड्स मुझे पूछे, it's basically projecting the real you to the outside world. So you are bold, yes. You are confident, yes. You are everything that you are. It's just that you need to know and you have to be confident in everything that you're doing. Are there any more questions? Okay, I would request sir to please speak a few words. How did you feel about the whole initiative? कैसे लगा आपको पूरी initiative? बहुत ही अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. आपने इतने गुणी लोगों के साथ मुझे बिठा दिया. थैंक यू वेरी मच. कॉम्प्लीमेंट. ये 4 लोग क्या कहेंगे बाद में मुझे? मैंने बताया 4 लोगों की सोचो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के बीच में बैठना भी है. तो आज मेरा सपना जो है पूरा हुआ. एंड उपासना जी आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए, आइए. उपासना जी मेरी गुरु भी हैं. उपासना जी हमारी कॉमेडी की गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं. कॉमेडी के बाप तो कई हुए, चाचा भी कई हुए, ये कॉमेडी की बुआ है. और हमारे कॉमेडी को मिली सबसे प्यारी दुआ है. तो उपासना जी आप आ गई, अब महफिल पूरी. बुआ का क्या मतलब है? देखो ये मुझसे कम से कम नहीं तो 15-20 साल बड़े हैं. आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस. कौन है ये आदमी? आपकी उम्र 22 साल है और जब तक 22 साल आपकी उम्र रहेगी आप 22 को में छाई रहेगी. एंड ये तो शबीना जी बहुत अच्छा कर दिया आपने. घर घर में जाकर टैलेंट ढूंढ रहे हैं. मेरे घर जरूर आना. मेरी पत्नी मुझसे कहती कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है. आप आके मुझे लेके जाना, बोलना कि टैलेंट घर घर जाके ढूंढ रही, तो उसको यकीन होगा. मेरी मतलब आप जितना प्यार अमीना नोट हो नोट करिए टीम. हाँ, आना है ना. पॉइंट टू बी नोटेड, मगर कैमरे में नहीं, ठीक है, अकेले में. लेकिन बहुत बड़ा ये देख लिया. तो मैंने मतलब उपासना जी, मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना. रांझना पिक्चर देखी क्या आपने? धनुष की फिल्म. वो इतना दुबला पतला, धनुष कम, तीर ज़्यादा लगता है. तो धनुष की फिल्म रांझना मैंने दिखाई, इतनी रोमांटिक फिल्म. पत्नी को दिखाई तो खुशी खुशी घर पर कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना. मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना. तो ये हमारा टैलेंट है. खासकर लॉकडाउन में आपने अपना टैलेंट दिखा दिया. सब जितने पुरुष है इस बात को इकरार करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, आत्मनिर्भर, आपदा में अवसर किसे कहते हैं हमको पता चल चुका है. अब जब मेरी काम वाली बाई घर पे आई तो मेरी पत्नी ने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई. गौर से सुनना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई. और अभी ये जोक मैं करने वाला हूं, इसके बाद मैं माइक उपासना जी को दूंगा. इस जोक से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है. सुनिएगा, इस जोक से अमेरिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है. इस वक्त मैंने जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है. और ये जोक यूएस ने मुझे सुना है, उपासना सिंह ने. So, guys, please welcome उपासना जी. Let's have a round of applause. Come on. ये वो इंसान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उपासना जी से. नानक, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच कि शबीना आपने मुझे यहाँ बुलाया. मेरा और शबीना का नाता बहुत पुराना है. ये तब का है जब शबीना एक्ट्रेस थी और हम लोगों ने एक सीरियल इकट्ठे किया था. और ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं शबीना को, लेकिन
ये एक अच्छी कोरियोग्राफर तो है ही, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। और वो तो उसके कामों से ही पता चलता है जो उसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, वरना आजकल दुनिया अपनों के लिए भी कुछ नहीं करती, तो ये तो दूसरों के लिए इतना आप कर रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शबीना ये करने के लिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक फ़िल्म बनाई और उसमें मेरे बेटे ने काम किया, नानक। मैं पहली बार आप सबको दिखा रही हूँ मेरा बेटा, नहीं तो मैं यही बोलती हूँ कि आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस, लेकिन ये नानक, हेलो बोलो। हाँ, ये मेरा बेटा है नानक। तो इसने फिल्म की 11 दिया पौ 12 और मैं शबीना को मैंने बोला शबीना आप इसका डांस कोरियोग्राफ करेंगी क्या? तो इन्होंने बोला कि उपासना जी ये कहने की बात ही नहीं है, और इन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। मैंने इनसे पैसे पूछे, वरना आजकल इंडस्ट्री में हम लोग भी जब काम करते हैं या कुछ तो पहले पैसे डिमांड करते हैं। इन्होंने मुझे कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप ये मुझे बताइएगा कि कहाँ पहुँचना है। इतना प्यार, इतना अपनापन, और ये नानक तो हमेशा से ही इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स किए इन्होंने, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी फर्स्ट डायरेक्टेड फिल्म में शबीना ने गाने कोरियोग्राफ किए हैं। थैंक यू मैम सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि वो तो खैर मुझे पहले ही पता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है और ऐसे काम वो करती रहती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाने लगूंगी तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जा के हर जगह से, मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, मैंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया, मैं होशियारपुर करके एक जगह से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हो तो आप हमेशा उसे एंजॉय करते हो। ये जो बच्चे हैं जिनको शबीना ला रही हैं और अच्छे डांसर्स बना रही हैं, और कल को हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर भी बने, और डेफिनेटली बनेंगे, जो शबीना के अंदर आ गए हैं वो बहुत अच्छा सिखाएंगी। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप लोगों को शबीना जैसी टीचर मिली, और जहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को मेरे साथ की ज़रूरत हो, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो मच।